ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ آج میں عراق کے ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی۔ کچھ وقت پہلے تک میں اس شاپنگ مال کو دور سے حسرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور آج میں اس سے اپنی پسند کی شاپنگ کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں یہاں وہاں گھومتی پھرتی رہی، تبھی میری نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس کے دیکھنے کے انداز کو سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہنا۔ یوں بھی میرے لیے یہ معمول کی بات تھی اور ایسا ہی ہوا جیسے میں سمجھ رہی تھی۔ جب میں مال سے باہر نکلی تو اس نے مجھے ڈیٹ کی آفر کی۔ وہ ایک پاکستانی لڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں جاتی۔ تم جتنے ٹائم پاس کے لیے میرے ساتھ چاہتے ہو تمہیں میرے ساتھ نکاح مطع کرنا پڑے گا۔ وہ مان گیا اور میں نے اس کے ساتھ رقم فائنل کر لی۔ میرے پاس اب دولت، روپیہ، پیسہ، ہر چیز موجود تھی، مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میں رفتہ رفتہ اپنے دل کا سکون کھو رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ دل کا سکون روپے، پیسے اور نت نئے ملبوسات میں خریدنے میں ہے، مگر میں یہاں پر غلط تھی۔ میں خوش ہونے کی کوشش کرتی مگر نہ جانے کیوں خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر پہ فون کرتی، بہن بھائیوں کو خوشی سے چہکتے ہوئے دیکھتی تو وقتی طور پر بہل جاتی اور پھر وہی بے سکونی مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتی تھی۔ میں ایک آفس میں ٹائپسٹ کی جاب کر رہی تھی۔ یوں تو میری تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، مگر میں اپنی ناآسودہ خواہشوں اور ضرورتوں کے آگے ہار مان گئی تھی، اپنا ان خواہشوں کے آگے سونپ دیا تھا۔ اماں اکثر مجھ سے واپس آنے کا سوال پوچھتی، میرا واپس جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں اسی ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ اماں مجھ سے جب میری شادی کے بارے میں سوال کرتی تو میں انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ اب انہیں کیا پتا کہ میں کیا کر رہی تھی۔ میں تو نہ جانے کتنی بار شادی کر چکی تھی۔ اس دن بھی میں حسب معمول آفس سے گھر واپس آنے کے لیے روڈ پر ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا اور چہرے پر کافی معصوم لگ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے، اور تبھی میرے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا تھا۔ تبھی میرے ہونٹوں پر جانی پہچانی مسکان پھیل گئی۔ کچھ دن پہلے میں نے صابر نام کے اس لڑکے سے نکاح کیا تھا اور اس لڑکی کو اسی کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بغور مجھے دیکھنے لگا تھا، اور جب میں کوئی بھی مجھے یوں بے خود ہو کر دیکھتا تو ایک احساس سے تفاخر میرے وجود میں پھیل جاتا تھا۔ میں بہت حسین تھی اور مجھے اپنے حسن پر ناز بھی تھا، اور اپنی خوبصورتی سے میں اچھی طرح سے آگاہ بھی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میں زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی اور اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، میں کچھ ٹائم پہلے ہی پاکستان سے یہاں پر آیا ہوں، آپ بہت زیادہ قیمت بتا رہی ہیں، آپ مجھے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیں۔ اس لڑکے کی بات سن کر میرے چہرے پر محظوظ مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر میں اس کا خیال کر کے کہنے لگی کہ چلو پھر ٹھیک ہے، تو مجھے 2000 روپے دے دینا۔ میں بھی یہ میرے لیے یوں انوکھا اور نیا تجربہ تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی اور میں جانے لگی تو اس نے مجھے پھر سے روک لیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں رک گئی اور کہنے لگی ہاں بولو، کیسی باتیں؟ وہ کہنے لگا کہ جو وقت بھی آپ کے ساتھ میرے گزاریں گی آپ کو وہ وقت میری مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ میں بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی کہ ظاہر سی بات ہے، وہ وقت تو مجھے تمہاری مرضی کا ہی گزارنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا کیا میری بات سمجھ نہیں رہی ہیں؟ آپ کو لباس، ہر چیز میری مرضی کے مطابق کرنی ہوگی۔ تبھی میں کہنے لگی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد میں اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ طے شدہ ڈیل کے مطابق کل اس کے ساتھ میں نے مسجد میں جا کر نکاح کرنا تھا۔ میں نے اپنا ایک خوبصورت سا جوڑا نکالا۔ یہ سلیو لیس تھا، گلا آگے اور پیچھے سے کافی کھلا تھا، اور میں نے اپنے بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ دوپٹہ کر کے میں اپنی خوبصورتی کو مان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا ماننا تھا کہ خوبصورتی کو دکھانا چاہیے، خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے، چھپانے کے لیے نہیں۔ اچھا سا تیار ہونے کے بعد میں نے جب خود میں آئینے میں دیکھا تو اپنی خوبصورتی کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔ گھر سے باہر جب میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو وہ وہاں پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے جن کے چہرے پر داڑھی تھی، اور ان کے چہرے پر اس قدر نور تھا کہ میں ان کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں ان لوگوں نے مجھے ایک نظر دیکھا تو نظریں چرا کر رہ گئے۔ ان کی نظروں میں اس قدر حیا تھی کہ میں اپنے آپ میں سمٹتی رہ گئی، اور میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ میں گلے میں ہی دوپٹہ ڈال لیتی۔ پھر جب مسجد میں داخل ہونے لگی تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ ابھی یہیں رکیں۔ اس سے پہلے میرے ہاتھ میں مطلوبہ چیز رقم رکھی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس کے پاس ایک چادر تھی،
उसने एक बड़ी सी चादर में मुझे पूरे का पूरा छुपा दिया। मैं उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। वो मेरी नजर का मफहूम समझकर कहने लगा कि मेरी आपके साथ पहले बात हो चुकी है कि आप मेरे साथ जितना टाइम भी रहेंगी, आप मेरी सारी मर्जी के मुताबिक रहेंगी। मेरी मर्जी का लिबास पहनेंगी। तभी मुझे अपने कहे हुए अल्फाज याद आ गए। मैंने तो खुद इस बात के लिए हामी भर ली थी। अब मैं क्या कह सकती थी। अब खामोशी से मैं इसके साथ मस्जिद में आ गई। यहाँ पर काफी सारे लोग थे और एक हाफिज साहब ने हमारा निकाह करवाया और उसके बाद उसे लेकर मैं अपने घर में आ गई। घर में आने के बाद मैंने चादर को एक तरफ फेंक दिया था और सोफे की पुष्ट के साथ टेक लगाकर रिलैक्स होकर बैठ गई और उसके साथ इधर उधर की बातें करने के बाद मैं कानों में हेडफोन लगाकर बैठ गई और म्यूजिक एंजॉय करने लगी थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब उसने मेरे कानों से हैंड फ्री निकाल दी और ये देखकर गुस्सा आ गया मुझे कि क्या बदतमीजी है ये। वो कहने लगा कि शायद आप भूल रही हैं, इस वक्त आप मेरे निकाह में हैं और मुझे आपको बार बार ये बात क्यों याद करवानी पड़ रही है कि आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक मेरे साथ हैं आप मेरी मर्जी के मुताबिक रहेंगी। ये सुनकर मैंने एक गहरा सांस लिया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उससे कहने लगी, ओके मैं समझ गई। ये बात आप मुझे बताओ कि तुमने ये हैंड फ्री मेरे कान से क्यों निकाले हैं। अजान हो रही है, अजान का एहतराम करना चाहिए, इसको खामोशी से सुनना चाहिए। गाना सुनना तो वैसे भी बहुत बड़े गुनाह की बात है और एक तरफ अजान हो रही हो और एक तरफ नाच गाना, तो जानती है कि गुनाह किस कदर वबाल आपकी जात पर होगा। उसकी बात पर मुझे अपने बचपन की दर्स की बाजी याद आ गई थी। वो इसी तरह जन्नत जहन्नुम की और गुनाह सवाब की बातें करती थी। तब मैं इनकी बातों से डर जाया करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता मेरी सोहबत इस तरह की हो गई कि मैं इन चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर हो गई। हालांकि घर का माहौल भी काफ़ी हद तक मजबी था। अम्मी नमाज की पाबंदी करती थी और हम सबको भी नमाज की तलकीन करती थी, मगर मैं हमेशा डंडी मार कर जाया करती थी। और इसके बाद अब ये शख्स मुझे गुनाह सवाब का सबक पढ़ाने लगा था। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते थे जो खुद को बहुत नेक और दूसरे को गुनहगार समझते थे। उसे फौरन ही जहन्नुमी करार दिया करते थे। तभी मैंने गुस्से से उसे कहा कि मैं अपने अमाल की खुद जवाबदेह हूँ, तुम मेरे मामलात में ज्यादा मदाखलत मत करो। उसकी बात ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया। आप शायद भूल रही हैं कि आप मेरे निकाह में हैं और उसके जो भी अमाल होंगे उसका मुझसे जवाब लिया जाएगा। मैं उसे हैरत से देखने लगी कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। वो कहने लगा, हदीस शरीफ में है कि औरत अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाती है। एक उसका शौहर, एक बाप, एक भाई और एक बेटा। और इस वक्त मैं आपका शौहर हूँ। अगर आप कोई गलत काम अब करेंगी तो मुझसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। मैं सर पकड़ कर रह गई थी। मैंने किस मौलवी को सर पे मुसल्लत कर लिया था। मैं दूसरे कमरे में चली गई। मैं इस वक्त इसकी नसीहतें सुनने के मूड में नहीं थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा था। उसकी बातों ने मेरे दिल दिमाग में हलचल मचा दी थी। और काफी देर के बाद मैंने दोबारा से जब वापस आई तो वो नमाज पढ़ रहा था और उसको यूं खुशो खजूर से नमाज पढ़ते देखकर मैं कितनी देर उसे देखती रही। वो ऐसा ही था, वक्त पर नमाज अदा करता था, कुरान पाक भी पढ़ता था और सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी भी देता था और वापस आता तो भी हशाश बशाश। इन 3-4 दिनों में ही मुझे उसकी रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था और ऊपर से वो मुझे भी नसीहत करना नहीं भूलता था। उसने मेरे लिए बड़े बड़े और खुले से चौगे नुमा कपड़े ला दिए थे और उनके साथ बाकायदा दुपट्टा भी था और फरमाइश भी की थी कि मैं जितने दिन भी उसके साथ रहूं मैं ये कपड़े पहनूं और दुपट्टा भी साथ लूं। मैंने झुंझलाते हुए उसकी फरमाइश पर अमल किया और दुपट्टा ओढ़ने के बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं पहचान ही नहीं सकी। मेरे चेहरे पर जो बेबाकी और तेज तरारी नजर आती थी, इस वक्त उसका कहीं भी शायबा तक नहीं था। इस वक्त मैं बहुत मासूम लड़की नजर आ रही थी। फिर वो कहने लगा, ये देखा दुपट्टे का कमाल, आप इस लिबास में किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। जब से मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी इसने पहली बार मेरी तारीफ की थी। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और मैं आईने के सामने से हट गई। जब मैं ऑफिस में आई तो हर कोई मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मैं अपने पूरे सर्कल में तरहदार और मॉडर्न लड़की के नाम से मशहूर थी। अब जब मैंने एकदम से अपना लिबास तब्दील कर लिया और सर पर दुपट्टा भी ले लिया तो लोगों का हैरान होना तो बनता था। अब मैं इस सारे खेल से बोर हो चुकी थी। मैंने इससे कहा कि बस बहुत हो गया, तुम अब इस निकाह को खत्म करो और अपनी राह लो। वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि निकाह को क्यों खत्म करूं। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि क्योंकि हम लोगों ने निकाह मुता किया था और हमारी यही डील हुई थी कि 5 या 7 दिन तक हम लोग एक साथ रहेंगे और इसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। मगर उसने अचानक से एक ऐसी इस दिन मैं सोकर उठी तो घर में चहल पहल नजर आ रही थी। मैंने अम्मा से इस बारे में पूछा तो वो बताने लगी कि आज तुम्हारी खाला हमारे घर में तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही है। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई क्योंकि मैं भी सुमेर को पसंद करती थी। वो कितने सालों से इराक में मुकीम था और अच्छा खासा पैसे वाला शख्स था। ये अलग बात थी कि वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, मगर रुपए पैसे के आगे मुझे उसकी ये खामी भी कबूल हो गई थी। खाला ने हथेली पर सरसों जमाने वाला काम किया था और झट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दिया था और मुझे ब्याह कर अपने घर ले गई थी।
1 साल में ससुराल में रही खाला ने मुझे हथेली का छाला बना कर रखा था और वो बार बार समीर को इस बात की याद दहानी करवाती थी कि मेरी बहू के जल्दी से कागजात तैयार करवाओ और उसे अपने पास बुला लो। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और तुम दोनों को ये वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। खाला के बार बार मजबूर करने पर समीर मुझे अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो गया था और जब मैं वहां पर आई तो मुझे अंदाजा हुआ कि समीर बिल्कुल भी वैसा शख्स नहीं था जैसा वो नजर आता था, जैसा मैं उसे समझा था। वो बहुत ही ज्यादा अय्याश इंसान था जिसकी जिंदगी में औरत और शराब दोनों बहुत अहमियत रखती थी और उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स भी थी। पहले तो वो सब चोरी छुपे करता था और जब उसे मैंने पकड़ लिया तो उसने झिझक दूर कर दी और वो मेरे सामने ये सब कुछ करने लगा। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़की घर में ले आता। मैं खून के आंसू पीकर रह जाती और इस सारी सिचुएशन से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई थी और मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। समीर ने मुझे इस बात की धमकी दी कि अगर तुमने मेरे घर में कुछ बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इन दिनों वो एक इंडियन मुस्लिम लड़की के आगे पीछे था। वो लड़की बेतहाशा खूबसूरत थी और उसकी काली स्याह आंखें गोया जादू की सी हैसियत रखती थी। समीर भी इन काली आंखों के शहर में ही डूब कर रह गया था और अब तो इसे जैसे ये भूल ही गया था कि मैं इसकी बीवी थी और इस घर में इसकी मुंतजिर रहती थी। 2 दिन तक वो घर में नहीं आता था और 2 दिन तक मैं घर में अकेली खौलती रहती थी। और इस दिन जब खाला की कॉल आई तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर खाला को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरी समीर से बात करवाओ। मैं इसे पूछती हूँ कि आखिर वो क्या ये सब सोचकर कर रहा है। जब समीर घर आया तो खाला ने उसे बेनुक्त सुनाई। वो इस वक्त नशे की हालत में था, सोचने समझने की सलाहियत से महरूम था। फिर गुस्से की हालत में उसने मुझे 3 बार तलाक दे दी और रात का वक्त था ये। उसने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस अजनबी मुल्क में बेसरो सामानी के आलम में टांगों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तभी एक औरत की मुझ पर नजर पड़ी। उसने मेरी बाबत सवाल किया और मैंने उसे अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया। वो औरत मुझे अपने साथ अपने घर में ले गई। वो मेरे साथ बज़ाहिर अच्छी थी, मगर जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो वो मुझे कहने लगी कि 4 माह तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी की। अब वक्त आ गया है, मैं तुमसे जो इन्वेस्टमेंट की है तुम पर, वो सूद समेत वापस कर दो। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। जब भी वो मुझे कहने लगी कि मैंने तुम पर जो खर्चा किया है वो तो मुझे वापस करो, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो मैं कहीं पे नौकरी करती। मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप मुझे कहीं जॉब दिलवा दें, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। उसने मुझे कहा कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें भला जॉब करके खुद को क्या थकाने की जरूरत है, तुम बस हाँ करो, तुम्हारे लिए काम ही काम है। वो शाम को एक जवान लड़के को मेरे पास लेकर आई। मैंने उसे देखा तो सवालिया नजरों से औरत को देखने लगी। वो कहने लगी कि ये इंडियन मुस्लिम है और ये जिना को गुनाह कबीरा समझता है, इसलिए ये जिस लड़की के पास भी जाता है इसके साथ निकाह मुता करता है और यही मेरा काम है। तुमसे पहले मेरे पास एक लड़की थी, मैं इससे भी यही काम करवाती थी और जो पैसे होते थे वो हम दोनों आधा आधा कर लेती थी। ये बात सुनकर मुझे कराहियत का एहसास हुआ। मैं उसे अपने साफ लफ्जों में मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। तब उसने मुझे कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो कहाँ जाओगी और क्या करोगी? यहाँ तो तुम निकाह करके गुनाह से भी बच जाओगी, वरना तुम इस तरह रास्तों में रुलती रहोगी तो लोग तुम्हारी इज्जत के साथ खुद ही खेल जाएंगे और तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, ना मैं इतनी जल्दी घर वापस जा सकती थी। मैंने फोन करके अपने घर वालों को बता दिया था कि मुझे समीर ने तलाक दे दी है। ये सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि मैं दयार गैर में हूँ और उसने मुझे वहां पर तलाक दे दी। वहां पर मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों का कहना था कि तुम फौरन कोई बंदोबस्त करो और जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन मैंने इन लोगों को कहा कि मैं वापस भी नहीं आऊंगी, तेरी यहाँ पर जॉब लग गई है। तब वो लोग चुप हो गए। मैं सच में पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी अगर मैं वहां पर गई तो लोगों की चुपती निगाहें मुझे जीने नहीं देंगी और सब मेरे माँ बाप को ताने देंगे कि तुम्हारी बेटी तलाक लेकर वापस आ गई। इससे बेहतर था मैं यहीं पर रहती और इस औरत की बात मान लेती। मैंने खुद को तसल्ली दी और गुनाह से बेहतर है कि मैं इसे निकाह मुता कर लूं और इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तब भी मैंने इसके साथ निकाह कर लिया और 1 हफ्ते के बाद उसने तलाक देकर मतलूबा रकम मेरे हवाले कर दी। और फिर एक के बाद एक औरत ने मुझे जैसे ये लत लग गई थी और अब तो मुझे इस बात में कुछ गलत महसूस भी नहीं होता था। एक दिन वो औरत जब बहुत ज्यादा बीमार थी तब वो कहने लगी कि अब जब मेरा वक्त आ गया है और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानी कर चुकी हूँ, इसे बहुत नाराज किया है मैंने बहुत, और मैं सोचती हूँ कि काश मैं इसकी फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारती तो मेरी आखिरत की मंजिलें भी आसान हो जाती।
मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो मेरा अंजाम देख लो। मेरा क्या अंजाम हुआ? एक ना एक दिन हम सब लोगों को यहाँ से लौट कर जाना है। मुझे मेरी गलती का गुनाहों से एहसास लेट हुआ है, मगर तुम ये काम छोड़ दो। तुम अभी से तौबा ताइब कर लो। अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि अचानक उसकी तबीयत और ख़राब हो गई और फिर उसे लेकर मैं अस्पताल में आ गई। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है। मैं उसे अपने सामने पहली बार किसी को मौत के मुँह में जाता हुआ देखा था। तभी कितने दिन तक मैं सख्ते की हालत में रही थी। इस औरत का कोई भी नहीं था और उसका ये छोटा-सा अपार्टमेंट अब मेरी मलकियत था। कितने दिन तक उसकी बातें मेरे ज़हन पर मुसल्लत रहीं और फिर मैंने वक्ती तौर पर ये काम छोड़ दिया और एक ऑफ़िस में टाइपिंग की जॉब मुझे मिल गई। मगर फिर जब कोई मुझे इस काम की ऑफ़र करता तो मैं इनकार नहीं कर सकती थी। और अब जब इस लड़के से मैंने निकाह किया तो उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सोया हुआ ज़मीर झंझोड़ दिया। वो कहने लगा कि निकाह की हैसियत जानती हैं आप? इस्लाम में क्या है? आपने तो दीन का मज़ाक बना के रख दिया है। निकाह आपके लिए खेल तमाशा है। जब दिल किया रिश्ता जोड़ लिया, जब दिल किया रिश्ता तोड़ दिया। निकाह को एक अहद का नाम है जो 2 इंसान आपस में करते हैं और सारी ज़िंदगी फिर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसका मकसद जायज़ रूहानी और जिस्मानी तस्कीन हासिल करना है ताकि इंसान गुनाह के रास्ते पर ना जाए। मगर कुछ लोगों ने गुनाह को आसान बनाने के लिए इसको बहुत से नाम दे दिए हैं। ये बात सुनकर मैं सख्ते की कैफियत में आ गई और उससे कहने लगी कि मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी के साथ ज़िना नहीं किया, मैंने निकाह ही तो किया है। इसी तरह मैं अपने दिल को तसल्ली देती रहती थी। मगर जब उसने मुझसे कहा कि ऐसे निकाह की इस्लाम में कोई शरई हैसियत हासिल नहीं है और ये तो बहुत बड़ा गुनाह कहते हैं इसे। जब कोई इंसान इस नियत पर गुनाह करता है कि मैं इसको माफ़ कर दिया जाएगा, तो इसका गुनाह फिर कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और जब कोई इंसान किसी गुनाह को मामूली और हल्का समझकर करता है, तो इस पर इस गुनाह का वबाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप भी यही कर रही हैं। आप इस गुनाह को बहुत हल्का ले रही हैं। मैं ये सुनकर ज़मीन पर बैठती चली गई। वाक़ई मैंने गुनाह तो कभी सोचा ही नहीं था कि जब मैं एक दिन अल्लाह को मुँह दिखाऊँगी, तो उस अल्लाह के सामने क्या उसे मुँह दिखाऊँगी। मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। मुझे अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों का एहसास हो गया था। वो मुझे कहने लगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप शुक्र करें कि वक़्त पर आपको समझ आ गई है। आपकी आँख खुल गई है। और मेरा मकसद था कि मैं आपको समझाना चाहता था, आपको गुनाह से रोकना चाहता था, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने इसे बेयकीनी से देखा और कहा कि तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो। वो हँस पड़ा और कहने लगा कि हमारे दीन में बड़ी उम्र की औरत से शादी करना भी सुन्नत है और मैं आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ, आपके नान नफ़े का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो फिर उम्र की क्या हैसियत रह जाती है। उसकी बातों ने मेरे दिल पर असर किया था और मैंने सोच लिया था कि अब मैं बाकी की तमाम ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारूंगी और इसके अहकामात पर अमल करूंगी। इसके बाद असद ने जब घर वालों को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने लोगों ने भी पहले तो हैरानगी का इजहार किया, मगर फिर उन्होंने असद की इस हकीकत को कबूल कर लिया और मुझे बहू के रूप में तस्लीम कर लिया। 4 साल का अरसा गुजारने के बाद हम दोनों अपने वतन वापस लौट गए थे। असद को यहाँ पर कारोबार करने का इरादा था और हम दोनों के पास अब इतने पैसे थे कि हम बाकी की ज़िंदगी अपने मुल्क में अच्छा सा कारोबार करके अपनों के बीच में रहकर गुजार सकते थे। मैं बार-बार असद का शुक्र अदा करती थी कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी और अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं गुनाहों के रास्ते पर ही चल रही होती।